Assalamu alaikum dear students. Welcome to the 28th lecture of supply chain management. As I often say, we come a long way. We have been discussing storage system in the last lecture. What I plan to do is that I want to finish that storage part in this lecture, as well as I want to start and maybe conclude the basic organization of the whole supply chain process. And after that, as I committed to you in the last lecture or maybe the lecture before that, that there are certain very different type of supply chain areas which need specific focus. Because I had a discussion with somebody and then I came to my mind that why not specifically focus on that one first, because we are making managers, right? And they should have, even if like we actually acknowledge while in the classroom environment that a faculty member can only impart knowledge, while the student can gain differently from the practical experience. Definitely we cannot ensure that in this sort of an environment. But there is a concept of experiential learning in certain universities in developed countries. Well, it is not that much adaptable in currently in Pakistan. But the point is that I need to give you basics of those specific areas. There are 2 or 3 main areas, but I would be focusing on one because that is the enough amount of time that we have. I also want you to take you towards specific case studies of Pakistan, specific cases or certain organizations which are operating in Pakistan, how they are managing their logistics. In those areas I was talking about, there is, for example, cold supply chain concept, in which, like, transporting materials like medicines or ice creams or stuff like that which need cold storage, and the whole facility, the whole mechanism needs to be ensured that it is through a certain amount of temperature is met and kept. Based on, then there are supply chains of, for example, you can say petroleum products. Those are very specific. So, but I would only be able to cover, cold supply chain, and I would also, because I want you to take you towards certain cases of Pakistan as well. Now, moving on, in the last lecture we were discussing storage systems. And in storage systems, I gave you some description of the warehouses as well, while we were outside the warehouse, because from the outside I took you inside the warehouse. What types of warehouses are being and what are the functions of warehouses? There were like owner, in case of ownership, you own the private warehouse, you have your own warehouse. There are public warehouses that are for rent, there are warehouses for lease, and then there are transit warehouses. And this one in the image right now was a similar one to a transit warehouse. Their purposes are, for example, to consolidate goods. It can be to weight bulk, to manage weight bulk ratio, then to package products, to mix products. These are basically the functions of a warehouse. Then there are certain products also in which I specifically mentioned that you need to store them for a longer period of time. So just discussing the summary of the last lecture, this was and this image is of a consolidation warehouse where few manufacturers are consolidating their product at one warehouse location, and then it is being delivered to one single customer. This consolidation warehouse might be owned by a separate entity. That is also a possibility, specifically in case of Pakistan. And then there was a distribution or break bulk or pool point warehouse. These are when the products are distributed based on that was a consolidation warehouse. This is basically a distribution warehouse when a single manufacturer provides products. The aim is to ensure transport economies of scale associated thing. Transportation economies is that when full truckload is shipped to that location, the cost of that transportation is low, and then from then onwards, from that warehouse onwards, it is distributed to various customers. While in the previous case, it was consolidation, and the same aim was achieved after the consolidation. So in this one, it is achieved before the consolidation, before the distribution rather. Then we also discussed the material handling system. There is the functions of material handling. The main areas are loading, unloading, movement to and from the storage, and order filling. And then there was materials handling consideration, which are load unitization. Basically in load unitization, I defined that how much optimal load to be carried within a warehouse, because now we are talking about the movement within the warehouse. Once the items are received at the warehouse, they are unloaded, of course, and that is mentioned, loading and unloading part.
and then they are placed in a specific location in the warehouse. Over that, the whole mechanism, how they are placed, I discussed that, because in a very simple system, it is very easy. In a warehouse with a low throughput, it is very easy to place items wherever you want, and then you can distribute those. And I don't mean by wherever you want, but you don't need to be that much careful. But a warehouse with a high level of throughput, with so much coming in and so much going out, they need to be very much organized. So that is why they divide their warehouses into bays. Now, that is directly related to, again, load unitization, because how much load to be carried in one single package, that actually defines the overall level of the productivity of the system. Then there is space layout, that how it is to be laid out, that is again more sophisticated in terms of a larger warehouse with a warehouse with a larger throughput than a warehouse with a smaller throughput. Then there is storage equipment, what type of equipment is to be used, and then there is movement equipment, what type of equipment will be used for, like for example forklifters, or should it be handled by workers, or there are conveyor belts, and there are different types of options. And equipment might be storage. In terms of storage equipment, there might be refrigerated equipment, there might be certain heated type of an equipment. There are different types of, you need to, certain medicines are supposed to be stored in a, you can say, cold storages. So, and certain, for example, fish would rot if it is not stored properly, vegetables would rot if not stored properly. So all these things, there is consideration of storage equipment as well as handling equipment. Along the way, in the last lecture, when the discussion was going on, we discussed certain layouts of various types of warehouse. A warehouse with a low throughput would be very simple, unloading and then loading. It might be one entrance for that. A sophisticated larger warehouse might have more bays in it, and there would be obviously order picking schedule for that, a location for order picking. Then there was the issue of zoning and sequencing as well, and batching. So I discussed all those. Then there is another type of warehouse layout, or rather a system through which the warehouse can be managed, that is being completely automated. Being completely automated would mean that there would be conveyor belts and automated robots along that. I guess I discussed that with you. If you would find time somehow, why don't you go to, for example, Amazon.com's warehouses. They have robots and all those sophisticated equipment to manage that warehouse, to organize how inventory is managed, to place boxes at various locations, then collect those boxes from those locations, then deliver it to the order picking point. They even have drones for delivery of those packages. They have successfully tested that very recently. So the aim is basically that the whole automated warehouse would be automated. There would be minimal involvement of human being in that. You can see there are, for example, automated crane storage and order picking system, that once the order is received, at the starting point is shipping and receiving. Shipping and receiving is that the item is dispatched from there and item is received at that point. From the incoming loads, there is a specific arrow showing that incoming load, after being audited, that what it is and exactly what category it falls into, so that it can be stored at the exact location. Then there is an, for example, automated crane storage and order picking area, where automated cranes are sorting the packages and placing them at their required locations. And same goes for order shipping. There is also an outgoing arrow for outgoing loads. That is again a whole automated system. The point is that is this one: economics of storage and handling alternatives. If you see, these are comparisons of various alternatives. Like for example, there is private warehousing with automated handling. Now that one is the one with most extensive, largest capital investment, because if you look at this graph, there is an x-axis, annual system throughput per centivate, or total centivate in centivades, annual system throughput, and on the y-axis there is cost to the company, how much cost it has to incur. The point where the graph originates is the intercept. Actually, that represents the fixed cost, the cost that has been initially incurred. And the slope of this, basically the slope of this line represents the variable cost, that how much cost is incurred at each centivade bracket that has been defined. The steeper that curve is,
it has higher variable cost per centiweight. Larger the weight, greater the cost is increasing. When if the line is flatter, that would, or rather you can say flatter when you compare it with the x-axis specifically, or when you compare it with other steeper graphs. If the line is flatter, that would mean that variable cost is low. Generically, the rule of thumb is that if you incur fixed cost in a larger amount in the start, or the investments which have higher fixed cost as compared to relatively to other similar investments which have lower fixed cost, the investments which have higher fixed cost have lower variable costs. So that is why in case of private warehouse, which is automated, completely automated, it is more flatter as compared to other warehouses, as when the quantity increases, quantity of throughput. But its y-intercept is the highest one. That represents that it incurs the highest fixed cost. जैसे जैसे वो लाइन आगे जाती है, उसका कर्व फ्लैटर है as compared to दूसरी जितनी सारी हैं. अगर उसके साथ साथ अगर हम एक एक को डिस्कस करें, पब्लिक वेयर हाउसिंग लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ फॉर बेसिकली रेंट. वो स्टार्ट होती है पब्लिक वेयर हाउसिंग, और उसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जस्ट सिर्फ वेयर हाउस फैसिलिटी एज पर सेंटी वेट, क्योंकि वेयर हाउस के जो बेसिकली कोट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. वेयर हाउस के कोट्स कैसे डिफर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द थ्रूपुट, it can be dependent upon the facilities that you ask for, it can be dependent upon the centiweight. For example, in US it is centiweight, कि आप कितना उधर रखना चाहते हैं, कितनी फैसिलिटी को आप रेंट आउट करते हैं, all those things, and what type of the item है, उसका लोड कितना है, उसके लिए क्या क्या उनको सर्विसेज देनी पड़ती हैं. इन दैट केस दैट इज़ पब्लिक वेयर हाउसिंग की नॉर्मली वेट्स डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक जेनेरिक रेट कंसिडर करते हैं एक ख़ास टाइप की प्रोडक्ट का, दिस इज़ बेस्ड ऑन अ सर्वे, बेसिकली जो सर्वे कंडक्ट किया गया. तो जो पब्लिक वेयर हाउसिंग है उसकी स्टीपेस्ट कॉस्ट है कि थोड़ी क्वांटिटी के लिए तो इट इज़ फाइन, यानी कि अगर हम क्वांटिटी अपनी ए से बी की रेंज में ले जाते हैं तो पब्लिक वेयर हाउसिंग इज़ ऑप्टिमल. लेकिन अगर हम ए से बी पे आगे चले जाते हैं तो देर आर अदर वेयर हाउसिंग जो उससे बेहतर पड़ती हैं क्वांटिटी वाइज. ये बेसिकली जो नीचे, क्योंकि एक्स एक्सिस ए जो जोन है वो क्वांटिटी को सेंटीवेट को रिप्रेजेंट कर रही है. एनुअल सिस्टम थ्रूपुट पर सेंटीवेट, एनुअल सिस्टम थ्रूपुट इन सेंटीवेट रादर. तो ए और बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर पब्लिक वेयर हाउसिंग चीपेस्ट पड़ती है. उसके अलावा दूसरी आती है लीज्ड वेयर हाउसिंग. लीज्ड वेयर हाउसिंग इज़ द वन विच इज़, आप कह सकते हैं, विच हैज़ अ लिटिल हायर. हमने शुरू में ही उस वक्त बल्कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो अगर हमारा फॉर एग्जांपल थ्रूपुट ज़्यादा है तो इन दैट केस जो आपकी प्राइवेट वेयर हाउसिंग है दैट सीम्स टू बी द चीपेस्ट. जो ओन्ड वेयर हाउस है, अपना प्रॉपर्टी ओन करते हैं आप, सबसे सस्ता आपको रेंट वाला पड़ता है, और दरमियान में कहीं लीजिंग वाली जोन आती है, और ये ग्राफ से भी आपको नज़र आ रहा है. जो लीज्ड है, क्योंकि लीज रादर लॉन्ग टर्म होती है एज़ कम्पेयर टू रेंटल एग्रीमेंट, तो लीज का एग्रीमेंट आपको उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है स्टार्ट में. डेफिनेटली यू हैव टू पे समथिंग इन द स्टार्ट. वो लाइन आपकी शुरू में ए से अप टू द पॉइंट बी जो पहली ब्रैकेट डिफाइन की गई है उसमें तो हायर है फ्रॉम आप कह सकते हैं पब्लिक वेयर हाउसिंग, लेकिन उसके बाद जाके उससे नीचे चली जाती है बी जोन के अंदर वो चीपेस्ट पड़ती है आपको. उसके बाद आपका आ जाता है, ये लीज्ड वेयर हाउसिंग की लाइन है. उसके बाद हमने डिस्कस करनी है प्राइवेट वेयर हाउसिंग विद पैलेट फोर्क लिफ्ट ट्रक हैंडलिंग. मैंने आप लोगों को वो बताया था कि पैलेट्स आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेटफॉर्म से बने हुए होते हैं डिफरेंट वेरिएबल साइजेस के, वेरियस साइजेस के. दे आर मेड ऑफ वुड नॉन कॉटन फॉर एग्जांपल. उसके ऊपर आइटम्स आप रखते हैं और वो फोर्क लिफ्टर से उठा सकते हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल मेट्रो वगैरह या इस किस्म की जगहों पे जाएं या बड़े इस किस्म के आप स्टोर्स के ऊपर जाएं तो उन्होंने बड़ी बड़ी शेल्फ्स के ऊपर वो पैलेट्स ही उठा कर रखे हुए होते हैं. उसी के ऊपर से वो सामान उठाते हैं, उसी के ऊपर रख देते हैं, जाके पैलेट्स को ही उठाते हैं, उनको शेल्फ्स के ऊपर रख देते हैं और उन्हीं को उतार के नीचे ले आते हैं. इफ़ यू हैव सीन अ वेयर हाउस फ्रॉम द इनसाइड, तो उन्हीं पैलेट्स के ऊपर वो लोग लोड किया होता है. तो बेसिकली अगर आप प्राइवेट वेयर हाउस बनाते हैं विद आप कह सकते हैं विद पैलेट एंड फोर्क लिफ्ट ट्रक हैंडलिंग के आपने इक्विपमेंट ली हुई है, ऑटोमेट इज़ द एक्सट्रीम जो पहला दिखाया गया. उसके बाद उससे नीचे आता है ये आपका बेसिकली प्राइवेट वेयर हाउसिंग पैलेट फोर्क लिफ्ट ट्रक. इस केस के अंदर अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट लीज वेयर हाउस से ज़्यादा. ऑब्वियसली आपने इक्विपमेंट परचेज करेंगे, आप प्राइवेट वेयर हाउस परचेज करेंगे, लीज से ज़्यादा है, लेकिन ऑटोमेटेड से कम है. जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इंटरसेप्ट वाली साइड की बात करूँ जहाँ पे वाई एक्सेस है, दैट इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन ऑटोमेटेड वेयर हाउस. डेफिनेटली ऑटोमेटेड वेयर हाउस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी.
इट इज़ अगेन उसका कर्व जो है वो रादर फ्लैटर है एज कम्पेयर टू लीजिंग वेयर हाउस और पब्लिक वेयर हाउस। इसका मतलब है जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करती है प्राइवेट वेयर हाउसिंग इन एनी केस आपको चीपर पड़ती है। यानी कि जो जोन है बी टू सी, अगर आप उसको देखते हैं, सॉरी बी तो हमने डिफाइन कर दी, जो सी की जोन आती है, सी के केस में ऑलमोस्ट जो आपका ये वाला प्राइवेट वेयर हाउसिंग फोर्कलिफ्ट वाला केस है, पैलेट फोर्कलिफ्टिंग, उसमें इट इज़ लेस देन ऑल द अदर, सबसे लोएस्ट कॉस्ट इससे पड़ती है। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी आगे चली जाती है तो फिर आपको ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी तो आपको मैन पावर मजीद हायर करनी है, फोक लिफ्टर्स मजीद रखने हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट है, उनको मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर एक दफ़ा आप ऑटोमेट कर देते हैं तो फिर आपकी रिकरिंग कॉस्ट, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये रिड्यूस हो जाती हैं। आपकी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, मैं उस ऑपरेशनल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने सैलरीज, हेल्थ इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, फिर जो आप फॉर एग्जांपल जो आपके फोक लिफ्टर्स हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस, पैलेट्स मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें तो उनकी भी मेंटेनेंस है, बट दिस मेंटेनेंस वुड बी एक्सपेंसिव, क्योंकि रेगुलरली हो रही होगी, दैट वुड बी अपॉन सर्टन टाइम फ्रेम, उनको साथ साथ करते हैं। तो एक ऑटोमेटेड वेयर हाउस लॉन्ग रन में या हायर क्वांटिटी के साथ आपको चीपेस्ट पड़ता है। तो वो अब आप देखें अगर डी के एरिया के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं तो दैट वुड मीन कि डी के इन डीज एरिया जो प्राइवेट वेयर हाउसिंग विद ऑटोमेटेड हैंडलिंग है वो सबसे सस्ता है। नाउ डू यू सी, अगर आप इन सब का आपस में कंपैरिजन करें तो सबसे, अगेन मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, सबसे कम कॉस्ट के ऊपर आपको ए वाला वेयर हाउस सूटेबल है, सबसे कम कॉस्ट वाला पड़ता है ए आपका वेयर हाउस जिसमें हम कहते हैं पब्लिक वेयर हाउस, अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी है। क्वांटिटी अगर ए से वो जो जहाँ पे एंड होता है बी की जोन में आती है तो आपकी वो बन जाता है, आप कह लें उसको लीज वेयर हाउस। अगर उससे ज़्यादा आप सी की जोन में आते हैं तो आपका प्राइवेट वेयर हाउस, हमने वो उसी वक्त पढ़ लिया था कि प्राइवेट वेयर हाउस सीम्स टू बी चीपर, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट आप चीज़ों को मैनेज खुद कर सकते हैं, प्लस अगर ज़्यादा थ्रूपुट हो तो वो आपको चीपर पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पब्लिक वेयर हाउसेस हैं वो आपको चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन द सेंटी वेट, यानी कि वेट कितना और थ्रूपुट कितना है उसके हिसाब से वो चार्ज करेंगे। रेट्स नेगोशिएट किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप प्राइवेट वेयर हाउस ले लेते हैं तो उसमें खाली अपने बिल्डिंग के मेंटेनेंस और इस किस्म के चार्जेस इनकर करने हैं, दैट इज़ योर प्रॉपर्टी। तो आपका जो कॉस्ट है आपके सी के अंदर, दैट इज़ जो आपका प्राइवेट वेयर हाउसिंग है विद फोक लिफ्टर एज वेल एज वो जो पैलेट वाला सिस्टम है, पैलेट एंड ट्रक सिस्टम, वो आपको सबसे सस्ता पड़ता है। और उससे आगे अगर चले जाते हैं डी की जोन में तो आपको ऑटोमेटेड, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड वेयर हाउस सबसे सस्ता पड़ता है। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउसेज और उनकी डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट इनकर होती हैं, उनकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया क्यों वो कॉस्ट किस तरीके से इनकर होती हैं और वाई जो कर्व्स हैं वो रादर स्टीपर हैं, क्योंकि ऑपरेशनल और मेंटेनेंस की वजह से, प्लस जो रेट्स चार्ज किए जाते हैं पब्लिक और लीज्ड वेयर हाउस में बेस्ड ऑन द साइज ऑफ या थ्रूपुट या क्वांटिटी ऑफ, आप कह सकते हैं वो जो वेट के सेंस में कि कितने आइटम्स हैंडल करने, किस वेट के उन्होंने आइटम्स हैंडल करने। आई गेस दिस एंड्स ओवर हियर, देन कम्स विद द वर्चुअल वेयर हाउस। वर्चुअल वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट इज रादर एमर्जिंग कॉन्सेप्ट। उसमें आप बेसिकली बिजनेस इस तरीके से रन करते हैं कि आप यू डोंट नीड टू कीप एनी आइटम्स और इन्वेंटरीज। मोस्टली आप ऑनलाइन ही, अक्सर ऑनलाइन बिजनेसेस वर्चुअल वेयर हाउसिंग सॉर्ट ऑफ सिनेरियो उनका होता है। जैसे डोंट होल्ड ऑल इन्वेंटरीज नीडेड फॉर सेल इन द कंपनीज वेयर हाउस, यानी कि आप सारी इन्वेंटरीज नहीं मेंटेन करते कंपनी के वेयर हाउस में जो आपने सेल करनी है। शिप सेलेक्टेड आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर। अब आप बेसिकली रादर, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि आप इंटरमीडियरी हैं, आपने ऑर्डर प्लेस करना है किसी जगह पे, आपने किसी जगह से ऑर्डर पकड़ लिया जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं। आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर बीच में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल XYZ कंट्री के अंदर डिमांड आई है, उन लोगों को सीमेंट चाहिए। आप सीमेंट के सप्लायर एज सच हैं तो नहीं, आप सीमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ब्रदर आप सप्लायर हैं, आप प्रोड्यूसर नहीं हैं। अब आप क्या करेंगे, जब उससे सीमेंट का ऑर्डर आए, यू आर नॉट गोइंग टू मैनेज इन्वेंटरीज, आप वेयर हाउस नहीं खोल लेंगे कि बहुत सारा सीमेंट उसके अंदर रखते हैं। देयर आर वेरी मच लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ अ सिनेरियो ऑनलाइन बिजनेस से। वो आप क्या करेंगे, आप उनका ऑर्डर पकड़ेंगे, उनसे पेमेंट एडवांस रिसीव करेंगे, आप आगे चेक करेंगे, आप किसी एक कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि इतने फॉर एग्जांपल टन सीमेंट जो है हमने सो एंड सो लोकेशन पे शिप करना है और ये उसकी मॉडलिटीज़ हम सारा उससे डिस्कस करेंगे। जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तो आप उनको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपने वेयर हाउस नहीं मेंटेन करना, आइटम डायरेक्टली यहाँ से लेके शिप यार्ड से होते हुए सीधा उस फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाएगा। यू आर डूइंग नथिंग इन बिटवीन, सिवाय वो ट्रांजेक्शन, यानी कि आप इंटरमीडिएट हैं, दोनों के दरमियान आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
यू आर डूइंग नथिंग एल्स. सो दैट कोऑर्डिनेशन के आपको जो एडवांटेज मिलता है कि आपकी कोई ओवरहेड कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, आपने कोई रेंटल पेमेंट्स नहीं करनी, कोई लार्ज ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी है ही नहीं. ऑल यू नीड टू डू इज मैनेज योर बिजनेस ऑनलाइन. तो मैं सिर्फ इन दैट सेंस यू हैव अ वर्चुअल वेयर हाउस. एक्चुअली आपने बता दिया कि इतना सीमेंट है मैं सप्लाई कर सकता हूँ. पीपल ट्रस्ट दैट यू हैव दैट सीमेंट. वो आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आप ऑर्डर आगे प्लेस कर रहे हैं. सो यू डोंट होल्ड ऑल इन्वेंट्रीज नीडेड फॉर सेल इन कंपनीज वेयर हाउस. अगले दिन भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि एक बिजनेस फेलियर रादर की एग्जांपल दी थी, बट द पॉइंट वाज सेम कि वो स्टॉकिंग पॉइंट्स रख लेते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर ऑनलाइन बिजनेसेस वाले. अब वो सारी प्रोडक्ट्स को लेकिन वहाँ पे भी स्टॉक नहीं करते. कुछ प्रोडक्ट स्टॉक करते हैं जो ज़्यादा डिमांड के अंदर होती हैं. जो को हट के प्रोडक्ट ऑर्डर की जाएगी वो डायरेक्टली कस्टमर जो सप्लायर से अपने कस्टमर तक शिप करवा देंगे. आप पेमेंट उससे रिसीव करके इसको इसका ऐसा दे देंगे, बाकी अपने पास रख लेंगे. शिप सेलेक्टेड आइटम डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज. एक चीज़ कि अब आपने वो जो बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी, जो पहले मैंने एग्जांपल दी वो आप वो सीमेंट वाली, दैट वाज कम्प्लीटली वर्चुअल, उसमें इन्वेंट्रीज मेंटेन ही नहीं कर रहे. जो दूसरी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने उस दिन आप लोगों को कुछ दिन पहले दी थी कि एक इंडिविजुअल का वीज़ा एक्सपायर हो गया, नुकसान हुआ, उसने बहुत सारा स्टॉक मेंटेन किया हुआ था. फॉर एग्जांपल यूके के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक उसने मेंटेन किया हुआ था चीज़ों का. अब वहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट थी, पैसे फंसे हुए थे. यस आई नो आई रिमेंबर. मैं आप लोगों को मनी टाइड अप इन इन्वेंट्रीज के सेंस में आपको बता रहा था. तो वो वर्चुअल वेयर हाउस सॉर्ट ऑफ ही कॉन्सेप्ट था, बिकॉज ही वॉज नॉट होल्डिंग इन्वेंट्रीज ऑफ ऑल द गुड्स. वो बहुत सारी गुड्स उसने एडवर्टाइज की हुई थी, उनकी वेबसाइट बनाई हुई है, जो भी कर रहा है मार्केट कर रहा है, लेकिन कुछ गुड्स जो उसने अर्जेंट डिलीवरी करनी है वो तो अपने पास स्टोर में रखेगा, सारी गुड्स नहीं रखेगा. तो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नीचे चली जाती, जिसकी वजह से उसने थोड़ी रखी हुई थी. रिक्वायर्स अ फर्स्ट रेट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, कि मतलब ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम डेफिनेटली नीड्स टू बी, आप कह सकते हैं द ऑफ आउट क्लास होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए सिनेरियो, बहुत एफिशिएंट होना चाहिए. बिकॉज वंस यू रिसीव द ऑर्डर यू नीड टू प्रोसेस दैट. देन मे रिक्वायर शेयरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन विद वेंडर्स. नो दैट इज़ वन ऑफ द इशू विद दैट. कि अब इशू है कि जैसे मैंने आपको सीमेंट की एग्जांपल दी थी, जो पाकिस्तान में अक्सर बिजनेस करते हुए लोगों को मतलब एक सबसे बड़ा जो इशू आ सकता है दैट इज़ पाकिस्तान में इन एनी प्लेस, कि जब आपने फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कतर में स्टेडियम बन रहा है, आपने वहाँ से ऑर्डर प्ले उठा लिया सीमेंट का. यू आर नॉट अ सीमेंट प्रोड्यूसर. आपने अपने सप्लायर से सीमेंट उठाना है और आपने यू नीड टू डिलीवर दैट टू डायरेक्टली टू कतर. अब कैसे, हाउ कैन यू मेक श्योर कि वंस यू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज टू एंड डेफिनेटली यू आर कीपिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ. तो वो आपस में डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की. दैट इज़ कि मे रिक्वायर शेयर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन विद द वेंडर, कि उसका एड्रेस, उसके शिपमेंट का एड्रेस, फ्यूचर ऑर्डर्स में भी दे वुड स्टार्ट डूइंग इट डायरेक्टली. सो दोज आर द सॉर्ट ऑफ इश्यूज जो वर्चुअल वेयर हाउसिंग में आपके पास आते हैं, क्योंकि अनलेस यू मेंटेन अ वेयर हाउस, आप उससे आइटम्स पहले अपने पास मंगाएं, वेयर हाउस की कॉस्ट बेयर करें, फिर यहाँ से ट्रक लोड्स करके आप उसको शिप यार्ड पे भिजवाएं और वहाँ से कतर भिजवाएं आप उसको. दैट इज़ वन ऑफ द रूट्स. लेकिन फिर आप क्योंकि वेयर हाउस अपनी कॉस्ट बचा रहे हैं, आप ओवरहेड्स बचा रहे हैं अपने, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बचा रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो देयर इज़ अ रिस्क कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दोनों के दरमियान शेयर कर रहे हैं. राइट. सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल वेयर हाउस. जैसे आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, राइट, देयर इज़ एन इन्वेंट्री ऑफ, आप कह सकते हैं इनके पास देयर आर नो ऑफ, दे डोंट नीड एनी ऑफिसेज टू अकोमोडेट फैकल्टी मेंबर्स ओवर हियर. दे हैव अ वर्चुअल क्लासरूम, दे हैव वर्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स. वो लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच जाते हैं, डाउनलोड ऑनलाइन कर लेते हैं, यूएसपी सीडीज़ के थ्रू आप लोगों को भिजवाते हैं. बट द पॉइंट इज़ कि दैट इज़ अ वर्चुअल इन्वेंट्री जो इनके पास एग्जिस्ट करती है. पीपल आर नॉट प्रेजेंट ओवर है. जब किसी फिजिकल कैंपस में जाते हैं तो दे नीड टू गिव देम ऑफिसेज, फैकल्टी को वहाँ बिठाते हैं वो लोग, क्योंकि उसने फिजिकली जाके लेक्चर डिलीवर करना. सो दिस इज़ वन मेजर डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन एक्चुअल कैंपस एंड अ वर्चुअल कैंपस. तो इसी तरह जिस तरह वो बिजनेस का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यू डोंट नीड टू हैव अ वेयर हाउस फॉर दैट, देयर इज़ अ वर्चुअल वेयर हाउस. आप सारी गुड्स अपने पास स्टॉक नहीं कर रहे. देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस दीज डेज. अगर आप ऑनलाइन जाके इस तरह के बिजनेसेस को सर्च करें, देयर आर मल्टीपल पीपल ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो आप उन लोगों से वो गुड्स एंड सर्विसेज, दे माइट नॉट बी हैविंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज विद देमसेल्व्स ऑल द टाइम. वो कहीं से आउटसोर्स करेंगे उसको, या किसी और सप्लायर को आपके साथ बाद में थ्रू करेंगे. सो दैट इज़ द होल पर्पज ऑफ हैविंग अ वर्चुअल वेयर हाउस. उससे आपकी कॉस्ट बहुत नीचे चली जाती है. ओके, वेयर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग सिस्टम के तो हम एंड पे आ गए. हम लोगों ने वो ट्राइंगल बेसिकली कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे एक दरमियान में कस्टमर सर्विसेज था या कस्टमर था, उसके एक एंड पे ट्रांसपोर्टेशन थी, नीचे लोकेशन थी, इस तरफ आपकी इन्वेंट्री थी,
और हमने इन सब के एक एक दो दो आपके कह सकते हैं सेक्शंस डिस्कस करके हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया, उसके फंडामेंटल्स किए, लोकेशन किया, लोकेशन स्ट्रेटजीज, उसके मॉडल्स, उसके टेक्निक्स देखी, हमने कस्टमर सर्विसेज को बड़ी डिटेल में शुरू में एक्सप्लोर किया कि कस्टमर सर्विस लेवल क्या होता है, एंड देन वी मूव टू इन्वेंट्रीज, जहाँ पे हमने इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री के, क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा सेग्रीगेटेड थी तो उसके अंदर और भी इशूज़ थे जैसे इन्वेंट्री और स्टोरेज और फोरकास्टिंग, सारे इशूज़ उसी के अंदर आ जाते हैं। तो अब वो सारे लिंक्ड जो हैं आपस में। नाउ लेट अस मूव ऑन logistics and supply chain organization. Now Peter Drucker again said a good organization structure does not by itself produce good performance, just as a good constitution does not guarantee great presidents or good laws or a moral society, but a poor organization structure makes good performance impossible no matter how good the individual managers may be. To improve organization structure will therefore always improve performance. A very good and interesting statement. अब हम लोगों ने प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से इसको देखा। नाउ द पॉइंट इज कि हम वी आर गोइंग टू लुक एट द होल ऑर्गेनाइजेशन। जो सप्लाई चेन का प्रोसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन प्रोसेस जो हम डिफाइन करते हैं, अब वो ट्राइंगल के अंदर है इस वक्त। ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप बेसिकली इंट्रा फंक्शनल, इंटर फंक्शनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने वो शुरू में ये बहुत पहले डिटेल में डिस्कस की थी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, लेकिन उस वक्त हम डिपार्टमेंटल लेवल पे डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट, उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप के अंदर क्या आ जाता है, उसका इंट्रा फंक्शनल और इंटर फंक्शनल, यानी कि जो फॉर एग्जांपल इंट्रा फंक्शनल वुड बी के आपके ऑर्गेनाइजेशन की लॉजिस्टिक्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की लॉजिस्टिक्स, जो इंट्रा फंक्शनल रिलेशनशिप है। इंटर फंक्शनल रिलेशनशिप हो जाता है दैट वुड बी आप कह सकते हैं जैसे HR और ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स, और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल के दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप। वो इन चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। फिर यही सारी चीज़ें डेफिनेटली सप्लाई चेन के स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर रही हैं। इन अदर वर्ड्स के पूरी सप्लाई चेन प्रोसेस के जो मेंबर्स हैं, जो चैनल मेंबर्स हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने आप कह सकते हैं जो पैरेलल पोजीशन पे दूसरे सप्लाई चेन के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे आपके लॉजिस्टिक्स वाला एक दूसरी एंटिटी के लॉजिस्टिक्स वाले से कैसे कोऑर्डिनेट करता है, ऑल दोज थिंग्स अफेक्ट्स द सप्लाई चेन स्ट्रक्चर। देन देयर आर पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन, देयर आर इनफॉर्मल आप कह सकते हैं शेयरिंग, देयर इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सॉरी नॉट इनफॉर्मल, इनफॉर्मल आगे जाके आएगा। देयर इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग कि आपस में कैसे आप लोग दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अलायंसेस के आपस में अलायंस क्रिएट कर लिया अगेंस्ट मे बी सम कंपेटिटर की वजह से भी अक्सर ऐसे केसेस हो जाते हैं। देन देयर इज कॉन्ट्रैक्टिंग के सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आप दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं अपने लिए। दैट इज पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन एस्पेक्ट जो अगेन जाके सप्लाई चेन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो चॉइसेस हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर उसने चूज़ किया हुआ है, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो अपने आप को मार्केट में किस जगह पे पोजीशन करती है, ये सारी चीज़ें। अब अगेन दे ऑल्सो इफेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग पोजीशन के हिसाब से अगर डिस्कस कर लें हम लोग, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था IBM के बारे में, HP के बारे में, सम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हम लोग फॉर एग्जांपल वी वुड बी द बेस्ट वन इन ऑफिस इक्विपमेंट। अब उन्होंने वो डिफाइन कर लिया, एक विजन और विजन अपना बना लिया, तो दे वुड हैव टू ऑपरेट। हमने कहा था ना, बिकॉज कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन जो बनता है वो ट्रिकल डाउन होते होते जो ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स के मिशन और विजन्स बनने शुरू होते हैं उसके आगे, लॉजिस्टिक्स के और सप्लाई चेन मैनेजर्स के। तो इसका मतलब है अगेन जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पोजीशन करती है, अपने आप को लीडर समझती है, फॉलोअर समझती है, अपने आप को फॉर एग्जांपल कस्टमर गोल ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज की तरफ समझती है, दैट होल थिंग एक्चुअली डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशनिंग, और वही ट्रिकल डाउन होके आपके फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करती है। दैट इज आप कह सकते हैं ऑल अबाउट द सप्लाई चेन सिस्टम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? डेफिनेटली डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये चीज़ें मेन। अब बेसिकली हम लोग वो एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर एक सप्लाई, जो है पिछली स्लाइड में जैसे आप लोगों को बता रहा था, हम वो एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर वो सप्लाई चेन का पर्सपेक्टिव प्रिवेल करता है, वो सप्लाई चेन की एंटिटी प्रिवेल करती है, नॉट पर्सपेक्टिव, एंटिटी प्रिवेल करती है।
सप्लाई चेन का पूरा सेटअप, ये सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स जिस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट उनको अफेक्ट करती है। डेफिनेटली जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस, गोल्स, विजन्स, ऑब्जेक्टिव उसको अफेक्ट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये तीन चीज़ें डिफाइन कर देती है कि हर सेक्शन की, हर डोमेन की जो है कि आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन उसी के अंदर ये चीज़ रेलेवेंट या ऑब्वियस हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, हु वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट, और किसके पास क्या काम करने की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, उसके साथ फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर HR, डायरेक्टर के नीचे जनरल मैनेजर्स होंगे। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इट इज फॉलोइंग। collects people together in a meaningful way to achieve the goal of supply management। एक ऑर्गेनाइजेशन जब क्रिएट की जाती है, हम लोग इकोनॉमिक्स में ये चीज़ पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करके। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कैमरा बनाना है, अगर आप बगैर एक, लेट्स अज्यूम दैट सोनी इज नॉट एन एंटिटी, वो कैमरास बनाते हैं, एक बंदा उसमें से उठता है, वो ये चीज़ वहाँ से खरीदता है, वहाँ से जोड़ता है, सो मेनी पीपल उनको इन्वॉल्व करके आखिर में वो कैमरा प्रोड्यूस करता है, कितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो इसका मतलब है हर बंदे से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, री-कॉन्ट्रैक्ट करता है। जबकि सोनी एक एंटिटी है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर लिए। जब उसने मुझे माइक फिक्स करने वाला हायर कर लिया अपने डिवीजन के अंदर, सो दैट मीन्स कि उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया। इसी तरीके से लेंस वाला बंदा, लेंस बनाने वाले, वो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करते करते ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी बन जाती है जो लोगों को इकट्ठा करती है आइटम को सप्लाई करने के लिए। लेकिन लोगों को कैसे इकट्ठा करती है? इन अ मीनिंगफुल वे टू अचीव द गोल्स ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। कि हमने चीज़ प्रोडक्ट बना के सप्लाई करनी है, हमने सर्विस सप्लाई करनी है, लेकिन दे आर गैदर्ड इन अ मीनिंगफुल वे। एक स्ट्रक्चर के तहत वो गैदर होते हैं, एक पर्पस के तहत गैदर होते हैं। वो किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट होते हैं जाके। तो हैज़र्डली लोग नहीं उठाएगी, मीनिंगफुल वे में लोगों को ऑर्गेनाइज करेगी रादर। सेट्स एसेंशियल कंडीशन सो दैट प्रॉपर कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स कैन बी रियलाइज्ड। कॉस्ट ट्रेड ऑफ को हमने बहुत ज़्यादा वी हैव डिस्कस्ड दैट अ लॉट। Facilitates the implementation of plans as well as the planning process. That is the aim of the organization. हम plans generate करते हैं, उन plans को उस rather plan generate करने के planning process को भी facilitate करती है organizational entity. And aids administration, कि वो सारा जब एग्जीक्यूट हम करने जाते हैं तो द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जिसके थ्रू वो सारा कुछ एग्जीक्यूट होना है, इवन के जो प्लानिंग प्रोसेस को हम फैसिलिटेट करते हैं, हम इवन के जो अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, उस सारे को एडमिनिस्टर करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब अगर खाली हम सप्लाई चेन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो द पॉइंट इज कि सप्लाई चेन इज़ द होल प्रोसेस, लेकिन उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट तरीके से देखते भी हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एंड समटाइम्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, राइट। समटाइम्स दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। जैसे हम वन बाय वन इसको देखते हैं, मार्केटिंग की क्या वन मोर थिंग, that conflict would be discussed like in the coming slide, but the point is कि हम जब इनको उस तरीके से देखेंगे एक एक पॉइंट को, only then we can understand why those conflicts originate. मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर सर्विसेज, फील्ड इन्वेंट्रीज एंड रेवेन्यू। मार्केटिंग इज द डिपार्टमेंट जिसका हेड जो है वो हु इज द वन, द पीपल इन द मार्केटिंग आर द वन हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, राइट। अब इनके काम में क्या आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि किस तरीके से प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, कस्टमर सर्विसेज कि कस्टमर, बिकॉज कस्टमर कम्स इन कांटेक्ट विद द मार्केटिंग पर्सनल, दैट इज़ वाई उनका जो मेन एम होता है वो कस्टमर को ट्राई टू कीप देम हैप्पी। तो दैट इज़ वाई इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरीके से डिफाइंड है, टू कीप द कस्टमर हैप्पी। सो दे वुड गो एट एनी लेंथ टू कीप द कस्टमर हैप्पी। अब दिस कम्स इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर डिपार्टमेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं अभी जाके। फिर फील्ड इन्वेंट्रीज मेंटेन करना, फील्ड इन्वेंट्रीज मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर द वन, बेसिकली एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज द वन जो बताता है कि इतने आइटम्स पड़े हुए हैं इस वक्त इन्वेंट्रीज के अंदर, इतने हमने डिमांड आगे, फोरकास्टिंग वाला पर्पस, कितने हमने सप्लाई करने, इतने हमें और चाहिए। लेकिन इन्होंने ऑर्डर किसको प्लेस करना है? इन्होंने ऑर्डर प्रोडक्शन को प्लेस करना है, वो टोटली दूसरा डिपार्टमेंट है, राइट। जब ये काम होना है तो इन्होंने पैसे किससे लेने हैं? इन्होंने रेवेन्यू, इन्होंने फाइनेंशियल कैपिटल किससे लेना है? फाइनेंस वालों से लेना है, वो एक दूसरा डिपार्टमेंट है। लेकिन फाइनेंस वालों का एम डिफरेंट है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, ऑपरेशंस का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ये सारे ऑब्जेक्टिव मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं,
लेकिन ब्लाइंडली ये अपने ऑब्जेक्टिव पे उस तरीके से फोकस नहीं हो सकते जिस तरीके से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कहीं फेल ना हो जाए। सो इसका मतलब है मार्केटिंग, अगर फॉर एग्जांपल उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो देयर इज़ फाइनेंस उसके जो साथ बना हुआ है, जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना उसका काम है। वरना मार्केटिंग का बात चले तो वो इतनी इन्वेंट्रीज मेंटेन कर ले, इतना आप कह सकते हैं इन्वेंट्रीज रख ले कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को कंसिडर ही ना करे, जबकि आपके फाइनेंस वाले वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के बारे में वरीड होते हैं। यू सी, तो अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। मैं इसी कॉन्फ्लिक्ट को भी डिस्कस कर रहा था कि आपके जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं क्योंकि उनके रोल्स ही ऐसे डिफाइंड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं। अगर एक तरफ उन्होंने इन्वेंट्रीज को मेंटेन रखना है, इन्वेंट्रीज को मैनेज रखना है, वो फोकस्ड होते हैं इस चीज़ पे, मार्केटिंग वाले, कि वी नीड टू प्रोवाइड दैट आइटम टू द कस्टमर, सो वी शुड हैव इन एक्सेस। उनका तो बस चले 500-500 एक्स्ट्रा पड़े। अगर फाइनेंस वालों का बस चढ़े तो उनके पास एक भी ना हो, क्योंकि वो तो कहते हैं कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इनकर होती है आप लोगों की। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जितना आप लोग पैसे सारे मांग रहे हैं, प्रोडक्शन वाले मांग रहे हैं, उसकी कॉस्ट हमें क्या इनकर हो रही है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम मांग रहे हैं हमने, क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने शेयर, हमने इक्विटी के थ्रू पैसे उठाए हुए, हमने उन लोगों को रिटर्न्स देने, हम लोगों ने डेट उठाए हुए, हमने वहां पे इंटरेस्ट देने, तो इसका मतलब है कि हमें कैपिटल जो हमने रखा हुआ, देयर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दैट। सो दैट इज व्हाई द फाइनेंस डिवीजन इज वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दे आर वरीड अबाउट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, एंड दे आर वरीड अबाउट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने वो पैसे दिए, उनका रिटर्न किधर है, क्योंकि उसी रिटर्न के थ्रू तो हमने ये सारे एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसी के थ्रू तो हमने वो इंटरेस्ट देना है, हमने उसी के थ्रू तो आपके फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड्स पे करने हैं, हमने उसी के थ्रू तो सैलरीज पे करनी है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट इतनी की आप लोगों ने, उसका रिटर्न किधर है। तो इसका मतलब है कि फाइनेंस का अपना रोल है, दे आर कंस्ट्रेन्ड बाय देयर डोमेन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, लेकिन वो इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। अगेन इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट इन सर्टेन एरियाज विद मार्केटिंग, बट इट इज अगेन कह सकते हैं इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरह मार्केटिंग माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद फाइनेंस इन सर्टेन केसेस, बट स्टिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स वुड बी इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देन देयर इज ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस के हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। सप्लाई ऑल्टरनेटिव्स एंड सप्लाई कॉस्ट, दैट इज मतलब हम हमारे पास कौन कौन से सप्लाई के ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और हम कॉस्ट कौन सी इनकर करते हैं। वेयर हाउसिंग, परचेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये ऑपरेशन की कॉस्ट आ गई, जो बेसिकली प्रोडक्शन के बाद आगे सारा ऑपरेशंस का एक्टिविटी आती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, जिसमें वेयर हाउसिंग भी शामिल है, जिसमें परचेजिंग भी शामिल है। ये जो फिजिकल ऑपरेशन सारे के सारे रन हो रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग तक चीज़ें पहुंच रही हैं, प्रोडक्शन से चीज़ें उठाई जा रही हैं, प्रोडक्शन को आपको सप्लाई दे रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज ऑपरेशंस। तो अब ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, अब दे माइट बी, आप कह सकते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ये वो स्लाइड है जिसमें उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें तो उसके हिसाब से दे माइट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जो मैं आप लोगों से डिस्कशन अभी कर रहा था। अगर वो ये सारे पॉइंट्स उन्हीं पिछले पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन से निकले हुए हैं, जो मैंने आपको डिस्कस की है पिछली स्लाइड, ये उसकी एक्सप्लेनेशन से निकले हुए हैं। नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। मार्केटिंग क्या चाहता है? मोर इन्वेंट्रीज। क्यों? बिकॉज वेन एवर देयर कस्टमर वांट्स द प्रोडक्ट, दे वांट टू गिव दैट प्रोडक्ट, दे आर बिल्ट लाइक दैट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना ही इस काम के लिए, उसमें उनका कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ देखें, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चाहता है? लेस इन्वेंट्री। क्यों? बिकॉज दे वांट लोअर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब इसमें उनका भी कसूर नहीं है, वो बना ही इसलिए। यू सी, तो अब दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे ठीक तरह सोच रहा है, और बट स्टिल दैट इज इन लाइन विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पीछे डिस्कस किए थे। फिर मार्केटिंग क्या चाहता है? फ्रीक्वेंट एंड शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज चाहिए मैं बना के दे दो, आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है। जबकि दूसरे एंड पे ऑपरेशंस क्या जाता है? लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स। मैंने को 500 दफा ये चीज जिक्र की होगी अक्रॉस दीज वीडियो लेक्चर्स। लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स फॉर प्रोडक्शन इकोनॉमीज, एक ऑप्टिमल लेवल होता है प्रोडक्शन रन का। दे आर नॉट यूजुअली वेरी शॉर्ट, दे आर लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स, और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है। तो जो ऑपरेशंस है, दे वांट लॉन्गर प्रोडक्शन रन्स, कि हम एक चीज़ बनाएं और बनाते जाएं और बनाते जाएं और बनाते जाएं। अगर एनपी भी रहे तो बस एक ही चीज़ बनाते रहेंगे। जबकि मार्केटिंग वाले, दे नो द कस्टमर व्हाट द कस्टमर नीड्स, और उनके अंदर ये बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे वांट दैट प्रोडक्ट डिलीवर्ड टू द कस्टमर।
कि मिले उनको, और लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स के ऑपरेशंस की डिमांड है। अब दोनों आ गए ना एक दूसरे से इन कॉन्फ्लिक्ट। देन फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द एम ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग कहता है कि पैसे वगैरह हमारा मसला नहीं है, चीज़ जितनी स्पीड से बना सकते हो, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो, यहाँ से ऑर्डर इनिशिएट हो, वहाँ से चीज़ हम कस्टमर को हैंड ओवर करें। अगेन वो कस्टमर पे फोकस्ड है, दे कैन गो एट एनी लेंथ टू कीप द कस्टमर हैप्पी। देन ऑन द अदर एंड फाइनेंस की क्या रोल है, चीप ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि कॉस्ट कम इन करो उसके ऊपर। फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग में ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा इन करोगी, चीप ऑर्डर प्रोसेसिंग में कॉस्ट कम इन करोगी। अगेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। मार्केटिंग की क्या डिमांड है, फास्ट डिलीवरी, कि चीज़ हमारे पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ऑपरेशन की क्या डिमांड है, लोएस्ट कॉस्ट राउटिंग, कि सबसे चीपेस्ट रूट या मेथड जो हमें पड़ता है वो हमें पहुंचे। अब अगर फॉर एग्जांपल हम Amazon.com से एक चीज़ मंगवाते हैं, हम लोग उससे मंगवाते हैं Amazon.com से या eBay से या किसी वेल नोन वेबसाइट से हमको आइटम ऑर्डर करते हैं, दैट इज सपोज टू बी डिलीवर्ड इन 15 डेज, क्योंकि उन लोगों ने कह दिया 15 डेज। फ्रॉम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर्पस दे हैव टू मीट द 15 डेज। लेकिन द पॉइंट इज कि उनकी कॉस्ट कितनी इनकर होगी। अगर वो शिप पे भिजवाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन कॉस्ट मिनिमल होगी। तो जो ऑपरेशंस वाले हैं दे वुड वांट टू कीप द लोएस्ट कॉस्ट रूट, दे वुड लाइक टू कीप दैट रूट जो सबसे सस्ता पड़ता है। जबकि जो मार्केटिंग वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, तो दे वांट टू एंश्योर फास्ट डिलीवरी। तो इसका मतलब है आगे ना दोनों कॉन्फ्लिक्ट पे अगेन। लास्ट वन इज मार्केटिंग वुड लाइक फील्ड वेयर हाउसिंग, फाइनेंस वुड लाइक लेस वेयर हाउसिंग, ऑपरेशंस वुड लाइक प्लांट वेयर हाउसिंग। तीनों की फिलॉसफीज ही डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों को मिलकर सप्लाई चेन बनती है। द पॉइंट इज कि द होल सप्लाई चेन प्रोसेस इज द कोऑर्डिनेशन विद एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों मार्केटिंग को फील्ड वेयर हाउसिंग चाहिए होगी, वो ये कहेंगे कि चीज़ें स्टोर हो तो हमारे पास स्टोर हो, ताकि हमने कस्टमर को डिलीवर करनी है, सो दैट वी कैन एंश्योर फास्ट डिलीवरी। फाइनेंस वाले लेस वेयर हाउसिंग क्यों कहेंगे, अगेन दे वुड कंसिडर द सेम थिंग कि वेयर हाउस हम लोग रखेंगे, जितने ज़्यादा वेयर हाउस होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट इन करोगी, वो कॉस्ट पे फोकस्ड होते हैं हर वक्त। ऑपरेशंस क्यों कहेंगे कि हमारे पास वेयर हाउसेज हों, सो दैट कि वो कहें कि जी मेंटेनेंस सारी वेयर हाउसेज की प्लांट के पास हो, रॉ मटेरियल स्टोर हो सके, फिनिश गुड वहीं पे स्टोर हो, हम जैसे चीज़ें कहीं जाएंगे हम डिलीवर कर देंगे मार्केटिंग वालों को, राइट। तो अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों के दरमियान, इन तीनों के दरमियान रादर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक्चुअली फाइनेंस की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स, चीप ऑर्डर प्रोसेसिंग, रादर लेस इन्वेंट्री और ये लेस वेयर हाउसिंग वाला देखा जाए तो वो बेसिकली लोग, आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट, आप कह सकते हैं लेसर नॉलेज ऑफ द टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हमने खुद देखा, हमने ग्राफिकल एनालिसिस किया, दैट इज़ द पर्पस ऑफ शोइंग दिस स्लाइड। हमने ग्राफिकल एनालिसिस किया जिसमें हमने देखा कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपकी फॉर एग्जांपल अगर बढ़ती भी हैं तो लॉस सेल्स कॉस्ट साथ साथ कम होती हैं, आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट साथ साथ उसकी वजह से कम होती हैं। तो इट इज लैक ऑफ नॉलेज वो माइट बी मोर ऑफ अ रीजन फॉर दीज टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब है कि अगर इसको आप एक सेपरेट एंटिटीज के तौर पे डील करना शुरू कर देंगे, दैट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग। सप्लाई चेन नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, ताकि ऐसा बंदा ज़रूर हो जो तीनों के इन सिनेरियोज का कंपैरिजन कर सके, जो टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है तो कहाँ पे कितनी रिड्यूस हो रही है, क्या रिड्यूस होने का रेशियो बढ़ने के रेशियो के बराबर है, या क्या फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस बहुत स्पीड से हो रही है और बढ़ कम रही है, तो दैट वुड बी अ बेनिफिशियल एक्टिविटी। अगर हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अपनी बढ़ा देते हैं तो हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी कम होती है, हमारी टोटल कॉस्ट रादर कितनी कम होती है, दोनों का एड अप करने के बाद। दैट इज द सिनेरियो। नाउ बेसिकली हाउ एक्टिविटीज, अगेन उसके रीजंस ऑफ एक्टिविटी फ्रेगमेंटेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स, जिसकी वजह से बेसिकली जो हमने ये वाले कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़े कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करने के बाद हमने ये चीज़ पढ़ा कि जो पूरी सप्लाई चेन है अगर उसको फ्रेगमेंटेड एक्टिविटी के तौर पे देखा जाए, ये वही चीज़ें जो बीच में मैंने डिस्कस की हैं अभी आपसे दोबारा, कि अगर उसको एक फ्रेगमेंटेड किया जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ योर आपके डोमेन फोकस, कि फाइनेंस वाला बंदा इतना प्योर फाइनेंशियल मैनेजर है, मार्केटिंग वाला इतना मार्केटिंग का है, ऑपरेशंस वाला इतना ऑपरेशंस का है कि दे फेल टू कंसिडर द होल मैकेनिज्म। जैसे मैं कह रहा था कि इट नीड्स टू बी सीन एज अ होल सप्लाई चेन प्रोसेस, तो लेकिन वो देखने में अक्सर फेलियर कॉज हो जाते हैं, और उसके रीजंस इज द लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ दोज रीजंस। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉस्ट ट्रेड ऑफ, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस,
That marketing department is separate from this department, that department is separate from this department. एक कन्वेंशन सिस्टम बने हुए हैं जिसकी वजह से वो इतनी डिपार्टमेंटल अलायंसेस और आप कह सकते हैं लॉयल्टी इतनी ज़्यादा है कि यू फेल टू कंसिडर इट एज बीइंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट यू आर फर्स्ट आप कह सकते हैं फाइनेंस गाय और मार्केटिंग गाय रादर देन बीइंग पर्सन ऑफ अ नेस्ले rather than that. For example, other areas considered to be more important to the logistics, other areas considered to be more important to the firm than logistics. यानी कि basically it only considers कि जी for example the issue of finance is more important than the whole logistics chain. जब आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने लगते हैं, when you misprioritize stuff, basically organizational entity as we discussed, that supply chain is आप कह सकते हैं बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सप्लाई चेन के अंदर सारे इन्वॉल्व हैं अदर, वो किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, फ्रॉम मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल के बनती है. तो जब वो सब की मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट वुड मीन अगर कोई एक एंटिटी ये समझने लगे कि फॉर एग्जांपल दे आर मोर सिंसियर विद दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द लॉजिस्टिक्स थिंग, देन दे वुड आप कह सकते हैं कि फिर एक्टिविटी फ्रेगमेंटेशन का पर्पस स्टार्ट हो जाएगा. जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशंस की क्रूड किस्म की लाइंस बनी हुई हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन है, बट इफ़ दे फेल टू कंसिडर दैट दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मेरी लगी हैं, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट गाय, और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए इज़ वेरी नेसेसरी. अगर वो लिंक जो फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केटिंग वाले ने तो बना लिया अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, फाइनेंस वाले ने ये बना लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से लिंक, लेकिन अगर वो ये देखे कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव या मार्केटिंग ये देखे कि फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, सो दैट वुड मीन कि सप्लाई चेन वुड कॉम्प्रोमाइज. दैट इज वेयर वो लाइंस लगनी शुरू हो जाएंगी, फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी एक्टिविटी की. वंस दैट एक्टिविटी फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस, तो हर एंटिटी अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझेगी ओवरऑल सप्लाई चेन के प्रोसेस. देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी इन एन एवोल्यूशनरी स्टेज, कि अभी नई नई एंटिटी बनी है जिसकी वजह से इतने क्लियरली रोल्स डिफाइंड है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि इट हैज़ मच टू लर्न येट. बेनिफिट्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन एलिमिनेशन, कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये फ्रेगमेंटेशन किसी तरीके से ख़त्म कर सकें, व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स फॉर दैट. इट कैन encourages इंपॉर्टेंट कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स टू बी अफेक्टेड, कि जो हमने पीछे देखा फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के केस में, या उस केस में आप कह सकते हैं कीपिंग लार्ज इन्वेंट्री, जो मार्केटिंग लार्ज इन्वेंट्रीज चाह रहा था, फाइनेंस वाले इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को देख के कहते हैं कि जी लो इन्वेंट्रीज या नो इन्वेंट्रीज. अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन रन्स की बात करें, ऑपरेशंस वाले कहते हैं लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स, मार्केटिंग वाले कहते हैं शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स. सो अगर ये फ्रेगमेंटेशन आप रिमूव करते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू जो कॉस्ट ट्रेड ऑफ वाला टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, वो कैन बी इम्प्लीमेंटेड एक्चुअली. फोकसेस ऑन एन इम्पॉर्टेंट डिफाइंड एरिया बाय टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि डेफिनेटली एज अ होल प्रोसेस को देखा जाए, सेट्स द स्ट्रक्चर विद इन विच कंट्रोल कैन टेक प्लेस. कैसा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है जहां पे आप कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ओवर ऑल द एक्टिविटीज. सो इन ऑर्डर टू एंश्योर efficient supply chain, or in order to ensure the overall efficient performance of any organization, different types of organizational structures are followed. Now, these organizational structures might be dependent upon the type of the organization or size of the organization or the type of the product it is producing, because जो बहुत सारी multinational organizations हैं जो एक्सपेंडेड है, वो एक टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकती. देयर आर सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स. फॉर एग्जांपल जैसे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ परसुएजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज, इंसेंटिव अरेंजमेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग, क्रॉस चार्जेस. दीज आर सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. देन सेमी फॉर्मल स्ट्रक्चर वुड बी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. और अगर फॉर्मल इनफॉर्मल जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं रादर देन उसको उस तरीके से हम लिख कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन इनफॉर्मल. प्रॉफिट शेयरिंग एग्जिस्ट कर रही है, इंसेंटिव अरेंजमेंट्स बनी हुई है, कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज बनी हुई हैं, टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस किया जा रहा है काम करने के लिए. जो सेमी फॉर्मल स्ट्रक्चर है दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. और उसके बाद हम आगे जाके स्ट्रक्चर्स को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. देन देयर आर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स. लाइन में वो आ जाते हैं बेसिकली जहाँ पे जो आपके जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, क्रिएट्स वैल्यू इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट हैज़ एन ऑपरेटिंग स्टेटस.
और एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ क्या कह सकते हैं, वो होते हैं जो बेसिकली प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन वो होते हैं जो एक्चुअली प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले मिल्क पैक है, दैट इन दैट केस जो नेस्ले मिल्क पैक प्रोड्यूस करने वाले हैं वो लाइन स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, जबकि जो उनको फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गया या लीगल वाले हो गए जो एडवाइजरी रोल पे हैं, जो बेसिकली अथॉरिटी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते प्रोडक्शन प्रोसेस की, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व, दोज आर आप कह सकते हैं कि स्टाफ आ जाते हैं उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाए तो कैसे बनेगी, देयर वुड बी अ प्रेसिडेंट, फिर आके मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी या कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी सारी की सारी। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें, मार्केटिंग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके अंदर ट्रैफिक एंड वेयर हाउसिंग है, कस्टमर सर्विस एंड सेल्स फोरकास्टिंग है, जबकि उससे आगे फाइनेंस की इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन की प्रोडक्शन स्केजुलिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, परचेजिंग एंड मटीरियल मैनेजमेंट है। ये इनकी फंक्शनल अथॉरिटी इस तरीके से इन रोल्स के अंदर डिवाइडेड है। लेकिन जबकि प्रोजेक्ट की अथॉरिटी है जो एक काम टेकअप करना है, दैट इज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर, दैट इज along in this direction, यानी कि दैट इज वाई इट इज अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कि वो दो चैनल से ऑपरेट की जा रही है रादर देन वन सिंगल चेन ऑफ कमांड। जो ऑर्गेनाइजेशन वन सिंगल चेन ऑफ कमांड से ऑपरेट की जाती है दैट इज रादर अ पिरामिड। लेकिन जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर दो टाइप्स की अथॉरिटीज़ हैं, एक उसकी प्रोजेक्ट की अथॉरिटी है जो अक्रॉस द बोर्ड आप उसको यूं हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी आप कह सकते हैं फंक्शनल अथॉरिटी है जो एक प्रोडक्शन मैनेजर की या जो उसका हेड है प्रोडक्शन का, उसकी आ रही है अपनी उस जोन के अंदर। तो प्रोजेक्ट की अथॉरिटी के अंदर आप इस तरह की एंटिटी इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी आप उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। फॉर एग्जांपल एक जीएम मार्केटिंग है, उसके साथ मार्केटिंग पर्सनल बहुत सारे हैं जिनके ऊपर चेन ऑफ कमांड है उसकी, जिनको कंट्रोल कर रहा है। फाइनेंस के मैनेजर्स हैं, जीएम फाइनेंस है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द सिनेरियो, उसके सारे फाइनेंस मैनेजर वुड बी रिपोर्टिंग टू हिम। देन देयर इज जीएम ऑपरेशंस और प्रोडक्शन, जिसको सारे प्रोडक्शन के पर्सनल उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब फॉर एग्जांपल एक केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल सर्टन प्रोडक्ट बैच या उसकी डिलीवरी या कुछ आइटम के बनने की और प्रोड्यूस होने की, डिलीवर करने की बात आती है, तो देयर आप एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना सकते हैं उसका। अक्सर एंटिटीज इस तरीके से भी ऑपरेट करती हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देंगे आप, सप्लाई चेन का कोऑर्डिनेटर बना देंगे। अब वो सारे बंदे अपने बॉसेस को तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, बट दे वुड बी आंसरेबल टू दैट गाय एज वेल। तो एक प्रोजेक्ट जो रन होता है आपने जब उसका हेड बना दिया, फॉर एग्जांपल एक आप कह सकते हैं कि जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन उसकी टॉप पे लगती है, एलसीडी जिसको देखते हैं, अगर एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, उसका मार्केटिंग का हेड है, उसका फाइनेंस का हेड है, उसका ऑपरेशंस का हेड है, वो एक ओवरऑल सारे के सारे मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करके बना रहे हैं। उसके अंदर आप एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं कि जो एलईडीज़ प्रोड्यूस होनी है और सप्लाई की जानी है, उस पोजीशन पे लगनी है, उनके लिए एक अलग आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देते हैं, जिसको एलसीडी बेसिकली जिसको टच करते हैं, सर टच स्क्रीन है बेसिकली। तो बेसिकली उस टच स्क्रीन को बनाने के लिए आप एक अलग आप हेड बना देते हैं। इन दैट केस अब मार्केटिंग वाले बंदे अपने बॉस को तो रिपोर्ट करते ही करते हैं, दे वुड ऑल्सो रिपोर्ट टू दैट गाय कि वो जो किस तरीके से कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या करना है। फाइनेंस वाले रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, प्रोडक्शन वाले बना के दे रहे हैं, तो आप एक अलग उसकी चैनल बना देते हैं जो बेसिकली मैट्रिक्स चैनल बन जाता है। देन दिस इज अ फॉर्मलाइज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था कि पूरी एक चेन ऑफ कमांड है जिस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, वाइस प्रेसिडेंट लॉजिस्टिक्स एंड वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके अपने अपने मैनेजर्स हैं, मैनेजर प्रोक्योरमेंट, मैनेजर वेयर हाउसिंग, मैनेजर ऑर्डर प्रोसेसिंग, मैनेजर ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजर इन्वेंट्री, ये सारे के सारे बेसिकली दिखाए गए हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट लॉजिस्टिक्स को। सो दिस इज़ अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, एक फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एक हमने और चीज़ डिस्कस की थी इसी ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में कि अलायंसेज और पार्टनरशिप्स बनाने का क्या फ़ायदा है। बेनिफिट्स हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली। नाउ दिस एस्पेक्ट इज, हम इससे पहले जितना डिस्कस कर रहे थे दैट वाज इंटर ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली आई एम सॉरी मेरी स्पीड शायद थोड़ी सी तेज़ हो गई, बट द पॉइंट इज आई नीड टू कवर दिस होल विद इन दीज फ्यू मिनट्स दैट आई हैव लेफ्ट। तो अगर आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज रेज योर हैंड्स, सिंस यू कैंट सो आई वुड कंटिन्यू। अगर मैं थोड़ा तेज़ भी लगूँ तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स अगेन सिंस यू कैंट सो आई वुड कंटिन्यू। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह और उस किस्म के एस्पेक्ट्स। नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने शुरू में जो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजिंग का एक वो ट्राइंगल देखा था, उसमें हमने अलायंसेज और पार्टनरशिप्स देखी थी। नाउ अलायंसेज और पार्टनरशिप्स का मकसद क्या है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। उसके बेनिफिट्स हैं, एक रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे मेन थिंग। देन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्किल्स,
जब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी के साथ अलायंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट, जैसे इवन के पाकिस्तान और चाइना ने आपस में अलायंस किया JF-17 थंडर प्रोड्यूस करने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को सेटअप लगा के दिया, ट्रेन किया, टेक्नोलॉजी दी, पाकिस्तान काम कर रहा है, दैट इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो जब अलायंसेस आपस में एक्सचेंज होती हैं, जब जो दो कंपनीज भी अपने आप को अलायंसेस अपना एलाई डिक्लेयर कर देते हैं, दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन, वो मिल के ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। सो देयर कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, देयर इज कंपेटिटिव एडवांटेज सच एज थ्रू इंक्रीज मार्केट पेनिट्रेशन। ऑब्वियसली आपके पास फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप्स हैं, आपके पास अलायंसेस हैं, दैट वुड रिजल्ट इनटू मोर मार्केट पेनिट्रेशन। Then there is competitive advantage such as yes, increased access to information for planning. डेफिनेटली आपके पास इंफॉर्मेशन जब ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, आपका जो आपकी दूसरी बिजनेस एंटिटी है वो भी आपके साथ काम कर रही है, जो ही माइट हैव बीन अ कंपेटिटर, लेकिन अब आपका एलाई है वो, तो यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। मोस्टली अलायंसेस एंड पार्टनरशिप्स आप किसी अक्सर बिजनेस एंटिटीज़ किसी एक प्रोडक्ट की तरफ भी कर लेती हैं कि हमने ये फॉर एग्जांपल हम इस टाइप का कैमरा बनाने लगे, लेट्स वर्क दैट, हम उस पर इकट्ठे काम करते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दैट वन, तो वो आपस में इकट्ठे मार्केट में शेयर करेंगे, तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन और वो बोथ ऑफ देम आर सिंसियर टू दैट प्रोडक्ट। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज सो मच मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड इंक्रीज एक्सेस और इंक्रीज पेनिट्रेशन इन द मार्केट, तो आपका प्रोडक्ट का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज अबाउट ऑल ऑफ सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आज। मैंने आज दौड़ तो बड़ी लगाई है, लेकिन उसका फ़ायदा भी है हमें। हम लोगों ने एक और एस्पेक्ट पे, इट वॉज एक्चुअली तेज़ इसलिए पढ़ा दिया आप लोगों को, द रीज़न वॉज कि ये चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और इस किस्म की सारे सब्जेक्ट्स के अंदर स्टडी करके आए हुए होते हैं, तो वी डोंट नीड टू गो थ्रू दैट डिटेल। जो सप्लाई चेन के एस्पेक्ट्स थे वो हमने काफ़ी डिटेल में कवर किए हैं, और उसके बाद मैं दोबारा आपको सप्लाई चेन के एस्पेक्ट्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। दैट वुड बी फॉर एग्जांपल जो कोल्ड सप्लाई चेन, और उसके बाद आप लोगों को कह सकते हैं पाकिस्तान का एक दो कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि ये आज वाला लेक्चर था भी ज़रूरी, द पोजीशन ऑफ अ सप्लाई चेन इन अ बिजनेस एंटिटी, या वो सप्लाई चेन जिस तरह पहले ट्राइंगल के अंदर नज़र आया हमें कि सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर जो है वो किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्कोप, फिर पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस, एंड द थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस भी कर ली हैं, और ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर बेसिकली डिफाइन कर देती हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करेगा। देन सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, वो मैंने डिस्कस किए। ऑर्गेनाइजेशन के उसके अंदर ही आप कह सकते हैं डिफाइंस अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। फिर मैंने कहा आप लोगों को बताया कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वन जो अपने गोल्स अचीव करने के लिए, प्रोडक्ट की सप्लाई इंश्योर करने के लिए पूल टुगेदर करती है रिसोर्सेज, जो लोगों को इकट्ठा करती है। रिसोर्सेज चाहे इन सेंस ऑफ कैपिटल, चाहे इन सेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, रिसोर्सेज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट या पीपल, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती है उनके साथ, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो। देन देयर इज सेट्स इनिशियल कंडीशन सो दैट प्रॉपर कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स हम लोग समझ सके। जो हमने आगे जाके देख लिया कि फाइनेंस और वो व्हेन देयर इज फ्रेगमेंटेशन दे लूज फोकस, एक्चुअली दे गेट फोकस्ड ऑन मोर देयर लोकल डिविजन्स रादर दैन द ओवरऑल कॉस्ट ट्रेड ऑफ एस्पेक्ट। देन फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एज वेल एज द प्लानिंग प्रोसेस एंड एड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर वो मैंने अगेन गोइंग बैक के, क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके डिफरेंट हैं, ऑपरेशंस के, फाइनेंस के और मार्केटिंग के, इसकी वजह से उनके दरमियान सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से फ्रेगमेंटेशन भी आ सकती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर कौन सी हैं, जैसे मार्केटिंग का काम है डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, फील्ड इन्वेंट्रीज एंड रेवेन्यू, ये मार्केटिंग का फोकस है। फाइनेंस का फोकस है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ऑपरेशन से कंसर्न है सप्लाई ऑल्टरनेटिव्स एंड सप्लाई कॉस्ट, ऑफ कोर्स, वेयर हाउसिंग, परचेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब इन अपने अपने डोमेन्स की वजह से इट कैन नेसेसरीली हैपन कि इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाएंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ईच ऑफ देम एट देयर इंडिविजुअल लेवल इज वेरी सिंसियर टू दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोस्ट ऑप्टिमल जो कॉस्ट ट्रेड ऑफ बेसिकली जो मेथड है वो इग्नोर हो सकता है इसमें। जैसे मार्केटिंग वुड नीड लॉट्स ऑफ इन्वेंट्रीज वाइल फाइनेंस वुड से नो इन्वेंट्रीज और लो इन्वेंट्रीज। मार्केटिंग वुड से फ्रीक्वेंट एंड शॉर्ट प्रोडक्शन रन, क्योंकि कस्टमर्स को रखना है, खुश रखना है, अगेन ऑर्गेनाइजेशंस एम। लेकिन ऑपरेशंस वुड से लॉन्ग प्रोडक्शन रन टू ensure economies of production, again organizational objectives।
अब इसमें से अगर आप देखें कोई भी डेविएट नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा रहा, लेकिन एक दूसरे से इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं. देन देयर इज फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड चीप ऑर्डर प्रोसेसिंग. देन देयर इज फास्ट डिलीवरी एंड लो कॉस्ट राउटिंग. देन देयर इज फील्ड वेयर हाउसिंग, लेस वेयर हाउसिंग एंड प्लांट वेयर हाउसिंग, अगेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. देन एक्टिविटी फ्रेगमेंटेशन के रीजंस क्या हैं? दैट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स, दैट इज old customs and traditions. Then some entities might consider that other areas are much important in logistics. Organization structure can be in an evolutionary stage, again that might be the reason. Benefits of fragmentation, जब आप उस fragmentation को अगर eliminate करने में कामयाब हो जाए, आप पूरे supply chain process को इकट्ठे देखने लगे, तो उसका benefit है, it encourages important cost trade-offs, focuses on an important defined area by top management and sets the structure within which control can take place. फिर हमने organizational चॉइसेस को डिफरेंट डिस्कस किया, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल के अंदर. फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट डिस्कस किया. मैंने आपको बताया ब्रॉडली दो होते हैं, एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर एग्जांपल पिरामिडियल स्ट्रक्चर होता है. अगली स्लाइड में पिरामिडियल स्ट्रक्चर है जो फॉर्मलाइज्ड है. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आपके फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल के अक्सर दो बॉसेस होते हैं जिसको उसने रिपोर्ट करना है. जैसे पिछले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर एक बॉस आपका फॉर एग्जांपल इमीडिएट उस फंक्शनल एरिया का बॉस जिसकी फंक्शनल अथॉरिटी है, दूसरा आपका प्रोजेक्ट का बॉस जिसकी उस प्रोजेक्ट की अथॉरिटी है. राइट आप प्रोजेक्ट की अथॉरिटी, जैसे मैंने आप लोगों को एलसीडी की एग्जांपल दी. इट कैन बी कि फॉर एग्जांपल ये सारे हेड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट टेकअप करते हैं जी कि हमने सो एंड सो एरिया को सो एंड सो चीज सप्लाई करनी है. राइट तो फिर उन इंडिविजुअल्स के मल्टीपल दो बॉसेस हो गए, वो प्रोजेक्ट का हेड हो गया कि सो एंड सो प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज हैं. उसके बाद वो सारे मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन वाले उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, एज वेल एज दे वुड कीप ऑन रिपोर्टिंग टू देयर ओरिजिनल बॉसेस. तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दोबारा बन गया. मल्टीपल टाइप्स एंड मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के. फिर हमने अलायंसेज एंड पार्टनरशिप्स को डिस्कस किया. बेसिकली कि मैंने आपको बताया कि जब अलायंसेज और पार्टनरशिप्स आप कर लेते हैं, देयर आर ऑलवेज बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. मैंने वो ट्रायंगल के आसपास जितनी सारी चीज़ें हैं उनको जल्दी से समराइज करके एक दफ़ा डिस्कस कर ली. यू कैन गो थ्रू द चैप्टर, इट इज़ वेरी ईजी, देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस इन इट. अलायंसेज एंड पार्टनरशिप का मैंने बेनिफिट्स बताए, रिड्यूस कॉस्ट एंड लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. देन देयर इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल स्किल्स, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, हाई पेनिट्रेशन in the market, increased access to information for planning and reduced uncertainty or risk. ये सारी वो चीज़ें हैं जो basically जब when two organizations become alliances, become allied to each other and there are alliances of multiple organizations. अक्सर वैसे देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्लोमेशन, नहीं कॉन्ग्लोमेट्स, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस आपस में मिल के कुछ कॉन्ग्लोमेट बना लेती हैं. अब आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी जाएं तो बड़ी बड़ी बिजनेस जाइंट्स ने कुछ जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं जिससे वो एक प्रोडक्ट R&D करके बना के लॉन्च करने वाले होते हैं. उससे वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स और सब कुछ ट्रांसफर होता है, क्योंकि बिकॉज जो आपके बंदे उधर काम कर रहे हैं दे ऑल्सो शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू. When they share information with you तो आपके पास टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन और मैनेजरियल स्किल्स आती हैं. आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है क्योंकि दोनों एंटिटीज़ मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं. सो दोज अलायंसेज, उनको रिस्क भी कम होता है क्योंकि एक तो रिस्क वैसे भी डाइवर्सिफाइड है दोनों के अक्रॉस, उसके अलावा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कंप्लीट है तो देयर इज़ लेस रिस्क ऑफ एनी फेलियर इन दैट. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर लेक्चर, द 28th वन. अब हमारे पास बिकॉज आई हैव हर्ड दैट लास्ट 2 लेक्चर शुड बी रिवीजन, सो हमारे पास 2 लेक्चर्स रह गए इन विच आई वांट टू कवर द कोल्ड सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट एज वेल एज आई वांट टू कवर, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट. कोल्ड सप्लाई चेन का हम इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज पूरे सप्लाई चेन के अंदर हमने जेनेरिकली ज़रूर डिस्कस किया, लेकिन आई वांट कि एक स्पेसिफिक केस, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की टाइप के साथ भी डिस्कस कर लें और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट देना डेफिनेटली इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान. तो होप टू सी यू सून. आई होप कि अगले लेक्चर्स आप इंजॉय करेंगे. आज का लेक्चर तो हमने बड़ी स्पीड से गुजार दिया, बट स्टिल देयर वाज मच टू डिलीवर, दैट वाज द रीज़न. और दीज वर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम अपने MBA के शुरू में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमने सिर्फ उसको सप्लाई चेन से एसोसिएट करना था कि उसके ऊपर कैसे मैनेज और इफेक्ट पड़ता है उसका. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.